project approach. Yes, please start now. Yes, today we are going to see बाद में नीता कंसल्टेंसी से फोन आ रहा है बाद में. Okay. Yes, so project approach. Okay, so मैम ये क्या हुआ? ये ना पूरे सब ये वीडियो ओके सबके फोटोज इधर दिख रहे थे ना इसलिए प्रॉब्लम हो रही थी. ओके, इन टुडेज वर्ल्ड टीचर्स हैव अ लॉन्ग विश लिस्ट for the student. They want them to be globally competent problem solver, critical thinker, technologically literate and collaborative, to name just a few, but those characteristics cannot be taught through traditional instruction. तो ये क्या है, प्रोजेक्ट अप्रोच से क्या होता है कि जैसे कि बच्चों को एक ट्रेडिशनल वे से जो सिखाते हैं उससे हटके उनको कैसे प्रॉब्लम सॉल्वर हो सकते हैं, वो ग्लोबली कॉम्पिटेंट, उनको हर यानी दुनिया की जो चीजें है वो सीख सकते हैं. वो किससे, हैंड ऑन एक्टिविटीज से. जब वो कोई प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होते हैं और उसके वजह से वो क्या, दे कैन यूज डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, दे टेक्नोलॉजिकली यानी लिटरेट होते हैं. एंड ऑफ कोर्स व्हेन इट इज अबाउट प्रोजेक्ट, जब प्रोजेक्ट की बात होती है तो कोलैबोरेटिव अप्रोच होता ही है, क्योंकि अगर प्रोजेक्ट इंडिविजुअल हो तो फिर वो बच्चा अकेले ही करता है. पर इन केस अगर वो प्रोजेक्ट अगर उसके टीममेट्स के साथ हो, उसके पीयर्स के साथ हो, तो ऑफ कोर्स उसको वो कोलैबोरेटिव अप्रोच डेवलप हो जाती है. So these are the basically we can say the advantages of the project approach. Okay, so project based learning, which is also known as PBL, slowly displaces traditional form of teaching, has evolved as a way for teachers to help students become what the world will one day demand of them. So ये क्या है, प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच में ऐसा है कि टीचर को एक हेल्प मिलती है, जिससे क्या होता है कि वो बच्चों को उसको फ्रेम कर सकते, शेप कर सकते, सो दैट दे कैन मीट द रिक्वायरमेंट. Okay, they can meet the requirement which are required to match with the other students, okay, throughout the world. We can say throughout the world, not only from India, but also they can compete with other students who are from the different countries. So ये project based approach में वो उनको इतना competent बना देती है. Okay, so what is PBL? In project based learning is an increasingly popular approach to teaching that allows students to explore real world problem and challenges through working and collaborating with other students in a small group. Yes, so project based approach में अगर हम बोले कि हाँ उनके ग्रुप्स के साथ करना है, उनके साथ जो पढ़ते हैं वो लोगों के साथ करना है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर हमको हमारे एरिया से रिप्रेजेंट करना हो तो इट इज नॉट नेसेसरी कि हमारे स्कूल से हो, तो 2-3 स्कूल मिलके भी कोई प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अपनी जो अपना एरिया है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो यस, इन दैट केस ऐसा नहीं है कि बच्चों ने कोलैबोरेटिंग उनकी जो ये स्किल्स है वो बस ऐसा नहीं है कि अपने स्कूल के बच्चों के साथ उनको करना चाहिए. नो, दे लर्न to tune with not only their peer but also the other students. So ये एक उसका benefit है. Just as in the real world, the challenges involved in the project require students to use a spectrum of skill which helps them fine tune their critical thinking ability, get their creative juices flowing and involve using knowledge from the breadth of curriculum. तो ये इसका ये है कि वो नहीं अपने जो उनकी जो एबिलिटी है उसके साथ जो करिकुलम है उनका, वो उसका मिक्सअप करके वो अपने एक नई स्किल डेवलप कर सकते हैं. और इतना ही नहीं, जब वो पीयर ग्रुप्स होते हैं तब वो एक दूसरे के साथ वो बहुत कुछ चीजें सीख भी सकते हैं. While standard lecturing and textbook reading may not just a minute. Okay, not be a part of PBL. The majority of projects focus on active and engaged learning, which studies show help students retain a deeper knowledge of the subject they are trying.
studying. So active engagement तो जब प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच होता है तो एक्टिव एंगेजमेंट तो बच्चों की होती ही होती है. इन एडिशन project based language also helps students to polish their organizational and research skill, build teamwork ability necessary for the real world, and become better communicator. So yes, when we are we are making project, तो हमारे साथ जो लोग होते हैं, कोई हमको कोई फिगर आउट करनी है कोई चीजें, तो ये उसके लिए अच्छा कम्युनिकेशन तो जरूरी है. तो इसके लिए क्या होता है, ये एक गुड कम्युनिकेटर की एबिलिटी भी उनमें डेवलप इवेंचुअली हो ही जाती है. सो मोस्ट इम्पोर्टेंटली पीबीएल अलाउज स्टूडेंट टू बेटर अंडरस्टैंड हाउ एकेडमिक वर्क कैन कनेक्ट टू द रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस. तो ये नहीं है कि बस उनको जो एकेडमिक ओनली बच्चों को अगर उनका असेसमेंट भी करना हो, तो ये नहीं है कि उनका जब बस एकेडमिकली वो कैसे है, ये बस इट्स नॉट मीन्स इधर ही नहीं रुकता है, पर हाँ वो जब प्रोजेक्ट वर्क करते हैं तो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस उनको मिल जाती है और एकेडमिकली भी वो बहुत अच्छे होते हैं. ओके ना, अभी हमको अगर एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना हो तो उसके क्या स्टेप्स है. क्रिएट अ प्रोजेक्ट, चूज अ टॉपिक एंड स्पेसिफाई द गोल एंड टारगेट एज रेंज. तो यस, अगर हमको कोई प्रोजेक्ट करना है तो उसके पहले तो हाँ क्या आइडियाज है, किस टाइप का प्रोजेक्ट करना है वो तो है ही, और उसका गोल क्या है, उसका मोटिव क्या है, हमको एंड में वो हमको कहाँ तक पहुंचना है, ये भी तो जरूरी है. टारगेट एज रेंज, अभी एज रेंज भी बहुत जरूरी है. बहुत छोटे बच्चों को कुछ बहुत ही उनके एज रेंज से बहुत ही दूर का अगर प्रोजेक्ट दिया तो देन दैट प्रोजेक्ट विल श्योरली नॉट वर्क. तो वो प्रोजेक्ट भी हम जब देते हैं ना, वो भी उनके एज रेंज से मैच होना चाहिए. एड मेंबर्स, असाइन स्टूडेंट फ्रॉम योर क्लास और कोलैबोरेट विद अदर मेंबर्स अराउंड द वर्ल्ड. हाँ, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, कोई हम प्रोजेक्ट वर्क देते हैं तो उसको चलो क्लास का हो या स्कूल का हो, कोई अपने एरिया का हो, अपने स्टेट का हो, या ये हमको अगर हमारे कंट्री को भी रिप्रेजेंट करना है, तो ये नहीं है कि हमको बस इधर महाराष्ट्र से ही सब लेने हैं, नहीं. सो ऑल ओवर आवर कंट्री हम कहाँ से भी वो कोलैबोरेट करके ले सकते हैं. तो स्टार्ट क्रिएटिंग, एड पेजेस एंड फिल देम विद टेक्स्ट, लिस्ट, पिक्चर्स, मल्टीमीडिया, इंटरएक्टिव डिस्कशन, वर्ड्स एंड मोर. तो अगर हमको ये सब चीजें करनी है तो हमारे पास प्रॉपर एक रिटर्न फॉर्मेट में होना चाहिए. हम उसमें क्या क्या वो यूज करेंगे, मटेरियल्स यूज करेंगे, कोई पिक्चर्स, कोई अगर मल्टीमीडिया टेक्निक्स यूज करेंगे, प्रोजेक्ट्स, ये स्लाइड्स करेंगे, तो डिस्कशन भी करेंगे. डिस्कशन पे कौन कौन एग्री करते हैं उसके लिए वोट्स करेंगे. तो कम्युनिकेट, देन कम्युनिकेट में ये है कि कीप प्रोजेक्ट मेंबर्स अपडेटेड विद द प्रोजेक्ट कैलेंडर एंड मैसेज टूल. अभी अगर हम कोई प्रोजेक्ट कर रहे तो वो प्रोजेक्ट के बारे में जो जितने भी मेंबर्स है उनको सबको वो आइडिया होनी चाहिए कि ये प्रोजेक्ट अपना कहाँ तक आके पहुंचा है. ये नहीं है कि अगर 5 मेंबर्स हो तो 2 एक्टिव है और बाकी के 3 इनएक्टिव है, उनको कुछ पता ही नहीं है क्या चल रहा है. जो कुछ हमको अगर वो प्रोजेक्ट के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, देन नॉट ओनली द 2 आर मीन्स उनको ही बोलना नहीं है, सबको अपने प्रोजेक्ट के बारे में सब जानकारी होनी चाहिए. एक्सप्लोर, you can also visit thousands of existing project for idea or to find a project you want to join. तो एक्सप्लोर, हमको अगर आइडियाज होते हैं तो हमको भी कोई आइडियाज चाहिए तो हम भी यहाँ गूगल पे सर्च करते हैं. तो हाँ, अगर हमको कोई टॉपिक मिल जाता है बच्चों को कोई प्रोजेक्ट के बारे में, तो ये वो भी बहुत चीजें एक्सप्लोर करके अपना प्रोजेक्ट बहुत अट्रैक्टिव और इम्प्रेसिव बना सकते हैं. ओके, अभी कुछ एडवांटेजेस है प्रोजेक्ट मेथड के. प्रोवाइड प्रैक्टिस, स्टूडेंट्स आर एबल टू सी द रिलेवेंस टू द रियल वर्ल्ड ऑफ व्हाट दे आर लर्निंग. तो ये प्रोजेक्ट मेथड के वजह से क्या होता है कि वो बच्चे रियल लाइफ सेटिंग में उनको पता चलता है कि हाँ हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं. Now provide variety for students and teachers. They get out of the classroom and into the environment. Integrate the 4 skills of reading, writing, speaking and listening in the natural way. तो हाँ, प्रोजेक्ट मेथड के वजह से डेफिनेटली 4 स्किल्स बच्चों के हैं वो और भी अच्छे हो जाते हैं. प्रमोट्स
लर्निंग ऑटोनॉमी एंड कोऑपरेशन, जब प्रोजेक्ट बच्चे करते हैं तो उनमें कोऑपरेशन, एक दूसरे की बात को समझना, अपनी बात समझाना, दूसरों की बात को एग्री करना, ये सब चीजें भी बच्चों में हो जाती है, इनकैलकुलेट हो जाती है। तो प्रोवाइड प्रैक्टिस अक्रॉस द करिकुलम, फॉर एग्जांपल आर्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी एक्सेट्रा। ओके, तो फिर इससे क्या होता है, ओनली उनका करिकुलम से ही नहीं पर अक्रॉस द करिकुलम, यानी स्कूल की दीवारों के बाहर की दुनिया से भी वो बहुत परिचित हो जाते हैं जब वो प्रोजेक्ट मेथड में से कोई काम करते हैं तो। So provide a sensory rich learning experience. Learning is enriched when the students see as well as listen, like audio visual. They remember even more when they can also use their senses of touch, smell, taste. In addition, project is a natural environment. तो क्या है ये प्रोजेक्ट मेथड से क्या है, नहीं से हमारे सारे जो ये होते हैं सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, यानी लोग बच्चे क्या करते हैं अपने हर सेंसरी ऑर्गन्स का यूज करके वो प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होते हैं। ये नहीं कि सिर्फ देख रहे हैं, ये नहीं कि बस सुन रहे हैं, ये नहीं, वो उनको प्रिपेयर भी करना है, सुनना भी है, सब एक्सपीरियंस भी करना है, सब चीज। इस वजह से क्या है वो एक नेचुरल एनवायरनमेंट में अपना प्रोजेक्ट करते हैं। सो दैट्स इट मैम, इतना ही। थैंक यू। क्लैप करो सब लोग श्वेता के लिए। यस श्वेता, अच्छे से किया आपने। इट वाज फ्लॉलेस एंड वंडरफुल एक्सप्लेनेशन। आपने पीपीटी पे भी मेहनत की है। थैंक यू मैम। तो आपको मुझे लगता है ये लास्ट वाला ही था। हर यस, प्रेजेंटेशन आपने काफ़ी अच्छे से दिए हैं। टाइम टू टाइम आप देते आए हो, बहुत जल्दी-जल्दी आपने सब कुछ कर दिया है, तो वंडरफुल, वेल डन। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। हो गया फिर आपका लास्ट प्रेजेंटेशन। हाँ मैम। चलो, और कोई देने वाला है आज प्रेजेंटेशन? Yes, ma'am. May I, Aarti? यस आरती, आपका भी कुछ है शेयर करना? मैंने सबके लिए वैसे शेयर का ऑप्शन ऑन रखा है, एनीवन कैन शेयर। प्लीज No, ma'am. कम ऑन Verbally वीडियो, no. योर वीडियो इज ऑफ। हाँ Ma'am, video on. हाँ, Yes, अभी ma'am. Video अभी on है, दिख रहे कुछ हो, नेटवर्क अभी में दिख, इशू है, मैं मीटिंग लीव करके फिर नहीं अभी आ रहा है, अभी दिख रहा मैम है, मीटिंग लीव करके फिर से करना। मैम अभी मुझे दिख रहा कुछ है। नहीं, आप नहीं दिख रहे हो। अच्छा पहले आप नहीं दिख रहे थे, अभी आप हमें दिख रहे हो। बाकी लोगों को बताओ ना, दिख रहे हैं ना? मैम मुझे आप नहीं दिख रहे हो, तो मैं दे दूं ऐसे ही। बाकी नहीं, लोग हमको बताओ दिख ना। रहे हैं, दोनों भी दिख रहे दिख हैं, रहा है। हमको दोनों दिख रहे हैं, मैम भी दिख रही है, आरती भी दिख रही है। हाँ हाँ ओके, मैं दे देती हूँ मैम फिर। हाँ, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग है यहीं पे। हाँ, सुन रहे हैं आपको। Okay, so ma'am, today's topic is how is child introduced to language at early age. जैसे कि न्यू बेबी बॉर्न होता है तो फर्स्ट 40 इयर्स तक ना बच्चे को सुनाई भी नहीं देता है। 40 डेज के बाद जब कोई भी मूवमेंट होती है घर में, किसी चीज की गिरने की आवाज आती है तो बच्चे का ध्यान जाता है। तो जैसे जैसे उसकी एज 2 to 3 मंथ्स की हो जाती है, ही स्टार्ट स्माइलिंग, मम्मा को देख के, मम्मा की लिप्स मूवमेंट देख के ही स्टार्ट स्माइलिंग, एंड आफ्टर 7 to 8 मंथ्स बच्चा मम्मा पापा बोलने की कोशिश करता है। तो बच्चे को फर्स्ट लैंग्वेज इंट्रोड्यूस्ड होती है घर में ही। एटलीस्ट बोला जाता है कि 17 टाइम्स रिपीटेशन के बाद बच्चा सीखता है कि उसको बोलना क्या है। तो कुछ कुछ वर्ड्स फेमिलियर हो जाते हैं डेली, डे टू डे लाइफ सुनने में। मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज जो बच्चा पहली लैंग्वेज सीखता है घर में, दैट इज हिज मदर टंग। मदर टंग सीखने के बाद अभी की बहुत सारी फैमिलीज ऐसी है जो घर में हिंदी इंग्लिश बोलते हैं। आफ्टर हिंदी एंड इंग्लिश जैसे बच्चा प्री स्कूल में जाता है तो बहुत सारी लैंग्वेजेस, इंग्लिश लैंग्वेज तो उसको इंट्रोड्यूस हो जाती है। जैसे कि अभी के इतने क्वालिफाइड पेरेंट्स हैं जो घर में ये सिखाते हैं, ABC A to Z सिखा देते हैं, 1 to 10 सिखा देते हैं, काफी सारे फ्रूट्स के नेम्स कलर्स बच्चे को आ ही जाते हैं। तो फर्स्ट लैंग्वेज बच्चा सीखता है अपने घर से, दैट इज मदर टंग। So I've written some of the points. I will just read out. During the first 3 years of the
life, the child has been constructing his language, and now in the Montessori classroom, he will be consolating about what he knows. Because the child will is being constructed, he can consciously being to explore language. This is the perfect time for the child to gain the correct tools in his home language. To teach the child correct oral language, Montessori split the learning into two groups. The first group is called the enrichment of the vocabulary. In these activities, the child learns new words on a daily basis through formal lessons and classified groups. The second group, oral work, is called language training. In this exercise, the child experiences a great variety of language experience. He learns through many forms of literature, exercise in self-expression, and games to be learned the grammar of the language, though both of these groups of exercise, the child later learning in reading will be facilitated by the recognition of words. This is foundation for all other language expressions. The purpose of the oral language lessons are very vast. Children will gain a clarity in speech, a large expansion of vocabulary, a familiarity in various aspects of language, such as correct usage of the language, artistic expression, a large range of language, awareness of the language, structure of the most is very important, and appreciation and enjoyment of language. Though all of the exercise, the child is also being indirectly prepared for the written language work of creativity, writing, and later totally reading. That's it, ma'am. सभी लोग क्लैप करो आरती के लिए. Very nice. Thank you. आरती आवाज आ रही है? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Okay. चलो, wonderful presentation, Aarti. It was your last Thank you, presentation ma'am. now. Yes, ma'am. Even you were so sincere throughout the course, and you have done all your presentations on time. So wonderfully done your last presentation too. Thank you, ma'am. Okay, let's move on then. Anyone else wants to give the presentation today? No one? Okay.